Good morning, children. Now we will discuss the challenges to the political parties. तो here challenges we will discuss कि आज के टाइम में political parties के लिए क्या क्या challenge है. Now you can understand the political party like at present how they are working. तो कुछ जो blemishes हैं या कुछ जो अच्छा काम नहीं कर रही हैं वो क्यों नहीं कर रही हैं. What is the reason behind them? So we will learn by some headings. So basically you will focus on the headings so then you can learn the detail even. So we have seen how crucial parties are for the working of democracy. Since parties are most visible face of democracy, it is natural that the people blame parties whatever the wrong and right. होता ही है कि अगर कोई भी अच्छा बुरा काम है तो हम parties को ही blame करते हैं कि so and so parties is doing such kind of work. So all over the world people express strong dissatisfaction and failure of the political parties. हर जगह political parties को ही blame करते हैं to perform of their function well. अगर अच्छा करेंगी तो भी, नहीं करेंगी तो भी हम पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं. दिस इज द केस ऑफ अवर कंट्री टू. पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड on four problem areas. So four problem areas we will see in working political parties and need face to overcome these challenges. So these are remain effective and instrument of democracy. Like अगर इन पर काम कर लिया जाए obviously the condition will be good of our country's problem of political parties. First is of lack of internal democracy. Internal democracy is a democracy हमने पढ़ा है. It is a very good thing. If democracy is there means all people have right choice and they can express their ideas, or they can you can say perfectly work and do the work. Same kind of thing if it's in internal in the party is going on, the party will flourish and party will get the name and fame. But if it is not, the party cannot be famous, party can be no more, or you can say they cannot come more many times for ruling. So this much only with this we can write this in paragraph. Let's see what is here. All over the world there is tendency of the political party toward the concentration of power in a few leaders at top. हमने क्या देखा, ज़्यादातर कुछ ही पार्टीज के हाथ में ही पावर होती है, उसके लीडर्स जो टॉप लीडर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ आप कांग्रेस का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. पार्टीज डू नॉट कीप द मेंबरशिप रजिस्टर. वो क्या होते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, बस अपने पुराने लोगों के साथ ही उनका तालमेल बैठा रहता है, उन्हीं से ही काम कराते हैं, उन्हीं को ही इलेक्शन कैंपेन और ये है मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई फेसेस करते हैं. सो डू नॉट होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग. उनकी रेगुलर मीटिंग नहीं होती, अगर होती है तो सबको वो इन्वॉल्व नहीं करते. एंड डू नॉट कंडक्ट द इंटरनल इलेक्शन. अब एक इलेक्शन तो सबको दिखता है जिसमें एवरी वन इज पार्टिसिपेटिंग, लेकिन एक इलेक्शन अंदर भी होना चाहिए कि हाउ मच पर्सन आर पॉपुलर इन द पार्टी, किसका कितना नाम है. रेगुलरली ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हाट हैपन इनसाइड. तो जितने मेंबर है, सपोज करिए किसी पार्टी के ऑल इंडिया में 500 मेंबर्स हैं पार्टी के, और 500 मेंबर को यही नहीं पता कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है. सो दे डू नॉट हैव द मीन्स और द connection need influence to the decision. As result of the leaders assume greater power to make the decision in the name of party. कोई भी डिसीजन लेता है लेना है तो बड़े बड़े लोग ले लेते हैं, छोटे लोग पता ही नहीं होता कि what is happening in the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it so difficult to continue in the party. More than loyal to party principle and policies, personal loyalty to the leader become more important. तो पर्सनल हो जाता है, मतलब पार्टीज के कहीं अपने रूल रेगुलेशन नहीं होते. अब आपका सेकंड चैलेंज है डायनेमिक succession. Dynamic succession is related to the first one, since most political parties do not practice open and transparent procedure of their functioning. There are very few ways of ordinary worker rise to top to party. मतलब ऑर्डिनरी सा आम आदमी को ऊपर जाने तक का मौका नहीं मिलता. एक ये है कि डायनेमिक सक्सेशन, ठीक है, मतलब फर्स्ट वन, सिंस द पॉलिटिकल पार्टी इज टू प्रैक्टिस ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है. ठीक है, सबके लिए पॉलिसी एक जैसी नहीं है, मतलब लुका छिपा कर काम होता है तो क्या होता है, उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, पार्टी ग्रो नहीं करती. दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स इन पोजीशन अनफेयर एडवांटेज फॉर द पीपल
favor the people, close them to fear the family members. In many parties the top positions are always controlled by the family, one family. ज़्यादातर परिवारवाद चलता है। कांग्रेस का एग्जाम्पल लेंगे आप कि और किसी को कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता, फैमिली मेम्बर इसको कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ अनफेयर, द मेंबर ऑफ सो दैट पार्टी एंड सो ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं, लोग समझ जाते हैं कुछ टाइम बाद और वो उस पार्टी को नेग्लेक्ट करते हैं। दे विल नॉट इन्वाइट देम अगेन टू रूल or they don't choose them. So this is also bad for the democracy. People educate and experience and or popular support come to occupy position of power, and this tendency is present in some measure all over the world and including in some of the older democracy. एंड थर्ड चैलेंज इज दैट मनी एंड मसल्स पावर। मनी एंड मसल्स पावर आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जहाँ पर पावर और पैसे का यूज़ किया जाता है पार्टी को ग्रो कराने के लिए। तो आप देखिए ऐसी पार्टी कितने दिन चलेगी। सो स्पेशली पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम इट हैपन्स सिंस पार्टी इज फोकस्ड ओनली द विनिंग इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, पैसा बांट देंगे या ज़बरदस्ती इलेक्शंस में वोट दिलवाएंगे। शॉर्टकट्स दे यूज़ एंड दे इंटेंड nominate those candidates who have the you can say और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। रिच पीपल ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करते हैं जो पार्टी को पैसे के दम पर चलाएं। सो रिच पीपल एंड कैंपेन्स हु गिव फंड्स टू द पार्टीज। कुछ पार्टीज हैं जो फंडेड पार्टी है, फंड पे भी चलती है क्योंकि प्रोपोगेट करने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए क्या है, दे नीड मनी। सो सम इन्फ्लुएंस और द पीपल पॉलिसीज इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल। कई बार तो क्रिमिनल को भी कर लेती है। हु कैन विन द इलेक्शन, जो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट इंक्रीजिंग द रोल ऑफ द रिच पीपल एंड बिग companies in democratic parties. The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer the meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must सिग्निफिकाइज डिफरेंट इन द रिसेंट ईयर। फिर आपके पास है मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है तो आप क्या है, कंट्री में अगर कोई 2 ही 3 ही पॉपुलर पार्टी है, ऐसा कि उन्हीं को आप चुनोगे, जैसे कि इंडिया में भी होता है। बीजेपी या कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट सिग्निफिकाइट डिफरेंट इन रिसेंट टाइम्स years there has been a decline in the ideological differences among the parties in most of the part of the world. For example, difference between the Labour Party and Conservative Party in Britain, very little difference we can see। मतलब एक जाएगी दूसरा आएगी, दोनों एक जैसा काम करते हैं। They agree no more fundamental aspects but different only in detail no on how political parties to be framed and implemented in our country too. The differences among all the major parties on economic policies have reduced. Those who want really differences policies have no option available to them. So sometimes people cannot have even elected different leaders either because of some of the set of leaders keep shifting from one party to another party. होता क्या है कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती, उनको पता है पहले इस पार्टी में था अभी इस पार्टी में है, तो सिर्फ ऑन द सेक ऑफ इलेक्शन दे पीपल डू इलेक्शन और दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, अदरवाइज दे डोंट हैव any choice. It happening in all the you can say part of world. So till here we will discuss in this video. Another important segment is that हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड। मतलब अगर ये सब चीज़ें हैं, इतने चैलेंजेस हैं, तो पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अदरवाइज वीडियो विल बी लेंदी है। ओके, गुड बाय।